آج کی محفل کا عنوان جو تھا وہ تذکرہ اولیاء کرام کے بارے میں تھا، ولیوں کے بارے میں تھا۔ تو ہم سب احباب حاضر ہوئے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ ولی دور آخرت میں جو رکعت کا دور چل رہا ہے، اس میں ولی ہوتا ہے۔ ولی کی تعریف دو لفظوں میں ہے۔ ولی قرآن کی نص میں بھی اس کو کہتے ہیں جو نبیوں کی عزت و آبرو اور نموز کا دفاع کرے، جو نبی علیہ السلام کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کا دفاع کرے، چوکی دارا کرے، جو چوکی دارا کرے اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور صوفی کس کو کہتے ہیں؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ولیوں کے بھی امام ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے بڑے صوفی سیدنا اس کائنات میں، اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کی اس مخلوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی صوفی آئیں گے سارے سیدنا صدیق اکبر کے پیروکار ہوں گے۔ سعد الانبیاء افضل البشر سیدنا صدیق سعد الانبیاء افضل البشر سیدنا صدیق سعد الانبیاء افضل البشر سیدنا صدیق نعرہ حیدری مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ صوفی اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے جو ان کی دفاع میں کھڑے ہوئے لوگ، وہ سارے اللہ کے ولی اور صوفی ہیں۔ حضور کی امت کے سب سے بڑے صوفی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر میدان میں نبی علیہ السلام کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، چھپے نہیں، سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناموس رسالت اور گستاخان رسول مسلمہ کذاب کے لیے کبھی یہ کسی سے مشورہ نہیں کیا، یہ امن کا درس نہیں دیا۔ انہوں نے کہا سارے مدینے والے جائیں کیونکہ حضور کی عزت کا معاملہ ہے۔ اور 1400 سال بعد آ کر کوئی صوفی کہے کہ نہیں، ابھی ہم صلاح کر رہے ہیں، ہم ابھی مشورہ کر رہے ہیں، ابھی ہم اپنی شورا بٹھائیں گے، اپنی کبینہ بٹھائیں گے، جائے جہنم میں تمہاری کبینہ نہیں، ہم مرید ہیں ابو بکر کے، ہمارے روش سینہ تام کے آگے کیا پڑھ رہے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہمیں تو ہمارے صوفی نے جو صوفیوں کے امام ہیں، جو صوفیوں کے پیشوا ہیں، جو صوفیوں کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے یہ درس دے دیا ہے۔ اس میں سوچ کی ضرورت نہیں، جہاں سوچ آ جائے وہاں شیطان آتا ہے، جہاں سوچ ختم ہو جائے وہاں صوفی کی ابتدا ہوتی ہے، جو سیدنا صدیق کو بتا کے گئے، تو ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ یہ سوچے کہ نہیں۔ اور آج ہمیں کہتے ہیں، آج ہمیں یہ صوفی کہتے ہیں یار دیکھ ہم کتنی بڑی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، نوح علیہ السلام کے سے بڑی درگاہ ہے، اس کے بیٹے کے بارے میں، ان کے بیٹے میں بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین نے بھی سوچا نہیں، سوچتے تو 6 مہینے کا بچہ پیش نہ کرتے، سوچتے تو پوری کربلا میں اپنے جان سارا ساتھیوں کی قربانی نہ دیتے ہیں؟ نہیں سوچا تو حر نے نہیں سوچا، انہوں نے کہا جا یزید جہنم میں جا، میں تو حسینی قافلے میں رہنے والا ہوں۔ یہ ہے صوفی، امت کے یہ صوفی ہیں۔ ہم ان سب صوفیوں کے پیروکار ہیں جو حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے پیروکار ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کرام آئے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کا تذکرہ نہیں کیا کہ میرے والد کا نام عثمان ہے، میرے پیر و مرشد کا نام ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، انہوں نے وہ یہی درس دیا، بس رسول اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، رسول اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ خواجہ صاحب نے رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، اور میاں شیر ربانی نے رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، مجدد پاک نے رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، حضرت باجودی بستامی ابو الحسن الخرقانی نے اپنے تذکرے نہیں کیے، اپنی گدیاں نہیں چلائی، اپنی درگاہ نہیں چلائی، انہوں نے کہا بس
दरगाह चलेगी कि रसूल अल्लाह की? क्या बात है। हम उन सूफियों के पैरोकार हैं, हम उन सूफियों के मानने वाले हैं। हमारे अकाबर भी शेर रब्बानी है, ख्वाजा अमीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, पीर इमाम अली शाह साहब हैं, मुजद्दिद पाक हैं, हुजूर गौसे ज़मा, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सारी उम्मत उनकी मुरीद है, सारी उम्मत उनकी पैरोकार है। आज हमें इसी चीज की कमी है कि हमें इन नाम निहार सूफियों ने अपनी तरफ से लगा लिया है और रसूलुल्लाह की तरफ से मुंह मोड़ दिए। नहीं, उम्मत को ये जागना चाहिए कि हमें रसूलुल्लाह की तरफ जाना है। जिस तरह हमारे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पहले फरमा गए, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से कहा। ये ऐसे नहीं कहा, ये मैं तो अक्सर कहता हूँ, ये बगैर देखियो बात नहीं होती। आला हज़रत ने ये देख के कहा होगा, हुजूर की बारगाह का नजारा करके कहा होगा, बगैर देखे ये बात नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह ने उन्होंने ये मुशाहदा किया होगा रसूलुल्लाह की बारगाह का, उन्हें जाना, उन्हें माना, या रसूलुल्लाह बस आपको जाना, आपको माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो किसी की तहरीक पे झुकता है वो सारी उम्र झुकता ही रहता है। जो रसूलुल्लाह की बारगाह में एक हजरत उमर बिन खत्ताब कितने जलीलुल कदर सहाबी हैं, मुरादे रसूल हैं, मुरादे रसूल हैं। हम सब रसूलुल्लाह को मांगते हैं, या अल्लाह में रसूलुल्लाह का कुर्ब दे। रसूलुल्लाह ने उमर को मांगा, मामूली बात है। उनके सामने किसी ने कह दिया कि आदम ताई बड़ा अमीर है, उसके कितने दरवाजे से, हर दरवाजे में साहिल जाता तो उसको खैरात मिलती, उसको खैरात मिलती। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने इस बात पे तलवार निकाल ली, उन्होंने कहा खबरदार, उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं है कि साहिब उसके दरवाजे पे आया और उसकी हाजत पूरी ना कर सका। फिर दूसरे दरवाजे पे क्या हाजत पूरी ना हुई, तीसरे दरवाजे पे क्या हाजत पूरी ना हुई। काश खरे मुस्तफा पे आ जाता, एक ही दरवाजा मिलता, इतना मिलता, इतना मिलता, क़यामत तक बांटता तो खत्म नहीं होता। ये है सकी, ये है सकी, ये है सकी, ये है सकी, ये है हमारे जिंदाबाद। ये हमारे औलिया इकराम का फैज खत्म होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है अबदी, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसके फैज की तो ये एक दुनिया की एक छोटी सी झलक है, ये छोटी झलक है। एक जलो आखिरी झलक तो लगनी है अभी, जब मैदान सजना है। इधर से अली अजमेरी के मानने वाले आ रहे, इधर दाता हुजूर ख्वाजा साहब के मानने वाले आ रहे, इधर गौस पाक के मानने वाले आ रहे, इधर कर्मा वाले के मानने वाले आ रहे, इधर मियां साहब के मानने वाले आ रहे, इधर मुजद्दिद पाक के मानने, तो टोलों के टोले आ रहे होंगे, फरिश्ते हैरान हो जाएंगे, या अल्लाह ये क्या, या अल्लाह ये क्या। उन्हें क्या आने दो, ये मैं खरीद चुका हूँ, ये खरीदे हुए माल है, इसके मतलब ना पूछो, इनके मतलब मत पूछो। ये पल्ले से बात नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह ने कहा दुनिया में जिसके साथ रहोगे उसी के साथ जाओगे, जिसके साथ तुम्हारा तल्लक होगा क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ तुम्हारा हशर नशर होगा। और हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें सबको अपने बंदों के साथ बना, उनकी गुलामी में रखना और ऐसे सूफिया और ऐसे औलिया इकराम की मायत में दुनिया में भी रखना और आखिरत में भी इन्हीं की मायत में उठाना, इन्हीं की मायत में उठाना। जब हम लोगों से कहते हैं कभी अल्लाह के बंदो, अच्छा जैसे बाबा जी खाजम साहब फरमाते हैं दिल एक ही होता, दो नहीं होता, एक इधर और एक इधर नहीं। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह हम जिनके साथ हैं तो क़यामत वाले दिन हमें उन्हीं में शामिल कर, तो जिनके साथ वो शामिल है उनको उन्हीं के साथ शामिल करना। वो आगे से चुप नहीं रहते, पेट में मरोड़ा भी करते, हमने तो कह दिया, हमें पता या अल्लाह में दाता साहब के साथ रखना, हमें ख्वाजा साहब के साथ रखना, हमें हज़रत गौस पाक के साथ रखना। हमने तो आमीन कह दिया, हम कहते या अल्लाह जिनके साथ ये है इनको उनके साथ रखना। वो कहते क्यों भैया, अब क्यों भीड़ उठी है, तो हो जाओ ना इनके साथ, आ जाओ ना इधर, अभी तो मौका है, छोड़ दो उन सबको, ये तरह तरह की गुलामी को तरह कर दो, एक ही गुलामी रसूल
का अपने गले में तौर डाल लो तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, वरना इसी तरह भूखे मरते रहोगे। पाकिस्तान जो बना था ये अल्लाह की निशानियों में से है, शायरियों में से है। इसके अंदर जो कहत साली हुई है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के वलियों की नाफरमानी का सबब है, ये उनकी नाफरमानी का सबब है। अगर इसमें कामयाबी चाहते हो, इसकी जमीन बड़ी सरखेज है, बड़ी सरखेज है, मगर माली सारे तबाह हो चुके हैं, माली तबाह हो चुके हैं। मालियों ने अपना बोरिया बिस्तरा बांध के किसी और के सुपुर्द कर दिया है। अरे काश तुम दरे रसूल पे आते ना, दरे रसूल की इस जमीन को पानी देते रहे जब तक ये जरखेज रही। अब क्या हुआ, अब गंदम कहाँ गई, अब चावल कहाँ गए, अब मिर्च मसाला कहाँ गया, किधर ले गए, हवा खा गई, कैसे हो गया। पहले भी बारिशें होती थी, अब कोई अनोखी बारिशें हुई है नहीं। ये लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है कि हमारा रुख कहीं और बदल गया, हम औरों की गुलामी में जा चुके हैं, हम औरों की मुरीद बन चुके हैं। अपनी मुरीदी, अपने बुजुर्गों की गुलामी छोड़कर हम लोगों की, गैरों की गुलामी में जा पड़े हैं। लिहाजा खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हमारे पास तो बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा अल्लाह के रसूल ने डिपू खोल दिया, दाता अली वली की शक्ल में। इतना बड़ा डिपू, इतना बड़ा डिपू जहाँ राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं है, जाओ और जोड़ियां भर के आ जाओ। इतना बड़ा डिपू जिसमें राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं है कि राशन कार्ड हो। हैं कोई कहता जी हम जनाब ये फंड देंगे, ये फंड देंगे, इधर आओ ना जहाँ खजाने खुले हुए हैं, किसी के फंडों को छोड़ो, रसूलुल्लाह की लंगर खाओ और क़यामत तक नहीं खत्म होगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। और ये पाकिस्तान औलिया इकराम का फैजान है, ये औलिया इकराम का फैजान है, ये अल्लाह की निशानियों में से है। दुनिया कायनात में दो मुमलकत ऐसी बनी जो कलमे के नाम पे बनी, एक मदीनतुर रसूल, दूसरा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान भी अल्लाह की, जिस तरह मदीनतुर रसूल बना मुसलमानों के लिए कलमे की बुनियाद पर, इसी तरह पाकिस्तान भी कलमे की बुनियाद पे बना। सारी दुनिया टेढ़ लाल है, इसका कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से और हुजूर के नादाने पाक के सदके पूरी दुनिया की हुक्मरानी पाकिस्तान करे ही करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। मियां साहब के कहने का मकसद जो है ना ये है कि आज लेकिन की पनाह, आज मदद मांगने से फिर ना मानेंगे क़यामत के दिन मानेंगे। तो बाबा जान रहमतुल्लाह तआला फरमाया करते हैं कि हशर तो होगा ये मालूम कि जीतदार कौन और हारा कौन। मियां साहब की गुफ्तगू का जो मगज़ है, वो सारा मज़हर है, वो ये है कि अभी वक्त है हुजूर के दिन के साथ खड़े हो जाओ। हमने किसी मौलवी, किसी पीर और किसी को नहीं माना, हमने हुजूर की वजह से माना जिसको माना। तो जो मौलवी, जो पीर हुजूर के दामन करम से वाबस्ता नहीं है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये मियां साहब की बात का ये मकसद है, इस पे अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।